آج کا خداوند کا کلام ہے امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 6 آیت۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ ہم اس آیت کا اوپر والا حصہ نہیں دیکھیں گے، ہم خدا کے روح کے مطابق جو خداوند نے سکھایا وہ دیکھیں گے، جس میں ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں، جس میں خداوند آج چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں خداوند کا خوف، کہ خدا سے ڈرنا کیا ہے، خوف کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے خوف کیا ہے، خوف کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، ہم لوگ خوف زدہ ہیں، کس سے ہے، کن سے ہوتے ہیں۔ تو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خوف کو سیکھیں اور خداوند کے خوف کو سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ خوف وہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈراتا ہے جب آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ جہاں آپ کو نقصان پہنچے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام نہ کریں کیونکہ اس کے پیچھے نقصان ہے۔ آپ جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آگے کھائی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ اگر ڈرائیونگ تیز کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک سمجھداری کا خوف رکھتے ہیں، سمجھداری کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف بزدلی نہیں ہے، خوف جو ہے وہ حکمت کا ایک پھل ہے، ایک سمجھداری ہے خوف۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خوف اپنے اندر رکھتے ہیں جو تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے اب تیز چلایا، تیز ڈرائیونگ کی تو مجھے اس کا نقصان یہ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ میری گاڑی کا نقصان ہو۔ گاڑی تو بے جان چیز ہے لیکن اس کو زیادہ خوف یہ ہونا چاہیے، یہ سمجھداری ہے، یہ ہونا چاہیے کہ میری جان کا نقصان نہ ہو، مجھے چوٹ نہ آ جائے۔ یہ خوف جو ہے سمجھداری ہے۔ تو اگر آگے کوئی کھائی ہے تو اگر اس کھائی میں آپ کو پتہ ہے اگر آپ گر جائیں گے اس میں سے نکل نہیں سکتے، آپ کیا کرو کہ اس کھائی کے پاس نہ جانے کی سمجھداری اپنا لیں گے اور ارادہ باندھ لیں گے کہ میں نے اس کھائی کے پاس نہیں جانا، میں نے اس کے ارد گرد نہیں جانا۔ وہ خوف جو ہے وہ آپ کو سمجھدار بناتا ہے اور آپ ایک فیصلہ کر پاتے ہو جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ نہیں جانے دیتے جہاں پہ بچوں کو چوٹ آ جاتی ہے یا چوٹ لگ جائے گی۔ ماں باپ اس خوف کی وجہ سے کہ بچے کو نقصان نہ ہو، ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو اس جگہ پر جانے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس خوف میں ان کے پاس سمجھداری، حکمت، دانائی، فہم اور اچھا فیصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن بچے اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم اس بات کو بعد میں ڈسکس کریں گے خداوند کی مرضی کے مطابق۔ اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو جائے یا ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی چور یا ڈاکو آ سکتے ہیں یا گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں، تو ہم اس خوف کی وجہ سے کہ ہمارا نقصان نہ ہو اور ہماری جان کا اور مال دونوں کا نقصان نہ ہو تو ہم اپنے گھروں کو تالے لگاتے ہیں، رات کے ٹائم لاک کرتے ہیں، اور دن کے ٹائم بھی ہم اس خوف کی وجہ سے سمجھداری کو اپناتے ہیں اور دن کو بھی اپنے گھر کو بند رکھتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ محفوظ رکھنا سمجھداری ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، فہم ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ برا نہیں ہے، اور یہ خود خوف اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ خوف ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم خوف نہ رکھیں تو ہم بہت سی چیزوں کا نقصان اٹھا سکتے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی۔ تو خوف ہونا جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ یہ تو ہو گیا خوف جو ہم نے دنیاوی طور پر سیکھا۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
आग आग लग जाने का डर हो, या हम ये देखें कि बच्चा जो है वो किचन में जाता है और वो छोटा है, तो हम उसको ये सोचते हैं कि इसको वो गर्म चीज़ ना लग जाए, अगर उसने कोई ऐसी माचिस पकड़ ली है या कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली है जिससे उस बच्चे का हाथ जल सकता है या हाथ जल जाएगा, तो उस खौफ की वजह से हम बच्चे को किचन में नहीं जाने देते और माँ बाप उसको मना करते हैं और समझाते हैं। तो ये जो समझाना है माँ बाप का, ये हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। लेकिन अभी हम खौफ को देख रहे हैं, तो ये जो खौफ है ये हमारी जान बचा लेता है, हादसात होने से पहले हमें बचा लेता है, अगर हम उस खौफ की वजह से अक्ल, फहम और समझदारी का अपने अंदर एक फल रख के अच्छा डिसीजन ले लें, फैसला लेकर परहेजगारी करें, तो हम खौफ की वजह से अपने नुकसान से बच जाएंगे। ये हमने देखा खौफ। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो खुदावंद हमसे चाहते हैं वो ये है, और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। अब हमें यहाँ पर किसका खौफ रखना है? खुदावंद का खौफ रखना है। अभी हमने देखा कि हम दुनियावी और जिस्मानी बातों और जिस्मानी चीज़ों के खौफ की वजह से अपने आप को परहेजगारी में रखते हैं, अक्ल और समझदारी का दामन नहीं छोड़ते और अच्छा फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये हमने दुनियावी सीखा, अब हम देख रहे हैं कि खुदावंद का खौफ। खुदावंद का खौफ क्या है? हम सब जानते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि बदी की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह ने यह बताया कि आखिर में ऐसा होगा कि इंसाफ होगा, और जो बदी की रूहें हैं, जिन्होंने बदी की है, जिन्होंने गुनाह किया है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए और जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया है, जो यीशु मसीह की तालीम को नहीं मानते, जो यीशु मसीह की तालीम के पीछे नहीं चलते, जो खुदावंद की सिखाई हुई तालीम पर अमल नहीं करते, जो यीशु मसीह चाहते हैं वो नहीं किया और यीशु मसीह को दुख दिया। हम जब यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे तो खुदा बाप भी हमें प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे कबूल करता है वो बाप को कबूल करता है, और बाप उसी को अजीज रखता है जो बेटे को अजीज रखता है। तो जब हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, ईमान नहीं रखते और यीशु मसीह की सिखाई हुई तालीम और नेकी रास्तबाजी पर अमल नहीं करते, तो ये हमारे लिए बदी है। उस बदी से हमें हमेशा की आग में जाना पड़ेगा, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो बदी करेगा वहां की आग ना बुझेगी, ना वहां का कीड़ा मरेगा। तो अगर हम इस आग जो कभी नहीं बुझेगी और उस कीड़े से जो कभी नहीं मरेगा डर जाएं, खौफ सदा हो जाएं और इस आग की जलन को महसूस करें, ये खौफ अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम डर कर एक अच्छा फैसला करेंगे। ये खौफ हमारे अंदर हिकमत और दनाई और फहम डालेगा। खुदावंद ने एक तमसील में कहा 10 कवारियों की कि अक्लमंद जो है उन्होंने अपनी मछलियों के साथ कुप्पी में तेल भी लिया था। तो ये अक्लमंदी है कि तेल भी लिया हुआ था। तो अक्लमंदी क्या है, समझदारी क्या है कि हम इस खौफ में रहें, खुद ये जान जाएं कि जैसे हमने पहले सीखा कि किसी चीज़ से जब नुकसान हो रहा है हमें तो हम अच्छा फैसला करेंगे। तो अब हमें मालूम है कि खुदा का इंसाफ ऐसा है कि अब खुदावन हमें आग में डाल देंगे, खुदावन सजा देंगे, तो फिर हमें खुदावन से डरना चाहिए। तो ये खुदावंद का खौफ हमें होना चाहिए कि खुदावंद हमें सजा देंगे, हमें अजाब में डाल देंगे और फिर हम वहां से निकल नहीं सकते। ये खुदावंद का हाथ ऐसा सख्त है। खुदावंद फिर अभी हम पर खुदावंद रहम करें, लेकिन इंसाफ जब होगा उसमें रहम नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है। जिन्होंने बदी की है वो बदी के लिहाज से, बदी की रूह से हमेशा की मौत में जाएंगे, हमेशा की आग में जाएंगे। जिन्होंने गुनाह किया है
लेकिन इंसाफ की रूह से जिन्होंने रासबाजी की, नेकी की, वो अपनी रासबाजी और नेकी की रूह से हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। अब खुदावंद का ये खौफ हमें रखना चाहिए कि खुदावंद अब आग में डालेंगे, तो हमें आग से नहीं डरना, हमें खुदावंद से डरना है, क्योंकि खुदावंद वहां भेजने वाले हैं उन लोगों को जो यीशु पर ईमान नहीं रखते और अमल खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर नहीं करते। अब हमें खुदावंद का डर और खौफ रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए, डरते और कांपते रहना चाहिए हमें खुदावंद से। अगर हम डर और खौफ हमारे अंदर रहेगा, तो जैसा पहले हमने सीखा रूहुल कुद्स के वसीला से कि जब हमें किसी बात का डर और खौफ होता है कि हाँ हमारा जानी और माली नुकसान होगा, तो हम क्या करते हैं कि अपने दरवाजे बंद रखते हैं, अक्लमंदी करते हैं। इसका मतलब डर है तो अमल भी है, डर है तो परहेज भी करें, डर है तो अपने कदमों को भी रोका हुआ है, डर की वजह से हम अच्छा फैसले को अमल में लाते हैं, यानी अमल जरूरी है अगर डर है। अगर डर नहीं और हम आज़ादी महसूस करें, हमें डर खौफ नहीं, तो हम अपने आप को ज़्यादा दलेर समझते हैं, तो फिर हम इसके उलट कोई भी अमल नहीं करेंगे। हम कहेंगे हम तो नहीं डरते, आ जाएगा तो देखी जाएगी, अगर चोर आ जाता है तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा एक्सीडेंट होगा ना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन लोग जो डरते हैं वो अमल भी करते हैं, क्योंकि उनको डर ऐसा लगता है कि वो अक्लमंदी को थामे हुए होते हैं, वो अपनी अक्ल को और समझ को नहीं छोड़ते। लेकिन बेवकूफ़ डर सब कुछ जानते हुए भी जब उसको ये अपना जामा पहना लेता है कि नहीं मैं नहीं डरता, कुछ नहीं होता, तो इसको अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी कहते हैं। इसी तरह खुदावंद का डर भी अक्लमंदी है। बेवकूफ़ी वो लोग कर रहे हैं जो खुदावंद से की इस बात से नहीं डरे। अब हमने देखा कि अगर डर है तो अमल है, अगर डर नहीं तो अमल भी नहीं। डर है तो परहेजगारी भी करेंगे, डर है तो हम लोग अमल करके अपने आप को उस अजाब से बचाने की कोशिश करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, या हम ये सोचते हैं कि हो जाएगा, तो हम अपने आप को महफूज रखते हैं। तो डर के साथ हिकमत और अमल परहेजगारी भी है। बहुत से लोग ये अपने अंदर ये समझते हैं कि हम खुदावंद से डरते हैं, तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। इसका मतलब है कि अगर खुदावंद का खौफ अंदर है कि वो जला देंगे, अजाब में डाल देंगे, हम वहाँ से नहीं निकल सकेंगे, हमें फिर कोई नहीं बचा सकता, इस डर की वजह से लिखा हुआ है के सबब से बदी से बाज आते हैं, तो वो फिर बदी से बाज आने की कोशिश करेंगे, वो बदी को छोड़ेंगे, अक्लमंदी को थाम लेंगे कि मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि इसकी सज़ा मौत है, आग है जो कभी नहीं बुझेगी और मैं जलता रहूँगा, मैं तड़पता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता, वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई सीढ़ी नहीं कि मैं उस खाई में से बाहर निकल आऊँ, कोई ऐसी रस्सी नहीं जिसको मैं पकड़ के बाहर निकल आऊँ, कोई ऐसा हाथ नहीं जो मुझे बाहर से पकड़ के उस खाई में से निकाल ले। अगर हम खुदावंद की इस बात को सच भी समझते हैं ना, तो इस सच्चाई की वजह से भी हम परहेजगारी करेंगे। अगर हम खुदा के कलाम को सच्चा समझते हैं, अगर हमारी जिंदगी में खुदा सच है, तो अगर हम खुदावंद को सच नहीं समझते, तो ये हमारी जिंदगियों से पता चलता है कि हम लोग उसके लिए कोई अमल नहीं करते, हमें उसका डर खौफ नहीं है, हमें खुदावंद का डर खौफ नहीं है। अगर खुदावंद का डर खौफ है, तो वो डर कि हमें मालूम है कि बदी की वजह से हम लोग आग में चले जाएंगे, खुदा के अजाब से हम नहीं बच सकते, तो फिर हमें खुदा से डर के उस बदी से परहेज करना पड़ेगा। तो क्या हम बदी से परहेज करते हैं? अगर हम अपने डर में हिकमत, अमल और परहेजगारी नहीं ला रहे, तो ये जान लो कि हम लोग खुदा से नहीं डरते, हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है और हम आयतें बोलते रहते हैं कि हमें खुदावंद का खौफ है,
تو یہ جھوٹ ہے. اگر خدا کا ڈر خوف ہے تو پھر اس میں عمل ہوگا. خدا سے ڈر ڈر کے ہم جئیں گے. اور خدا سے ڈرنا جو ہے یہ بزدلی بے وقوفی نہیں ہے. میں پہلے بھی خدا کی روح کے وسیلہ سے بیان چکی ہوں. یہ عقل مندی ہے, یہ سمجھداری ہے. کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ کو کہ اچھا ٹھیک ہے میں ادھر سے چھلانگ لگا دیتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ آپ کی عقل مندی ہے؟ ہرگز نہیں, یہ بے وقوفی ہے. تو اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ عقل مندی ہے, اور اپنے آپ کو آگ میں جان بوجھ کے جھونکنا بے وقوفی ہے. میں اس کلام کے لیے پڑھوں گی امثال کی کتاب, اس کا 15واں باب, اس کی 23ویں آیت. خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. آمین. اس کا پہلا والا حصہ ہم دیکھیں گے صرف. خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے. جیسا کہ پہلے جو رول کچھ نے بیان کیا کہ اگر خداوند کا خوف ہے تو حکمت بھی آئے گی, حکمت میں تربیت آئے گی, حکمت سمجھائی جائے گی, حکمت اور پرہیزگاری, اور بتایا جائے گا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا. اب جو تربیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تربیت میں یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جو صحیح ہے وہ کرو اور جو غلط ہے وہ نہ کرو. اسی کو تربیت کہتے ہیں. تربیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا جو بدی ہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, لہٰذا آپ یہ نہ کرو تاکہ آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. تو ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور پھر ان کو نیکی کی بات بتاتے ہیں کہ نیکی ہے, یہ اچھی ہے اور یہ نیکی کرتے رہو. اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم اس دنیا میں بھی اپنوں سے عزت پاتے ہیں اور خداوند سے تو ضرور ہی پائیں گے, اس زمین پر اور آسمان پر بھی. تو تربیت کیا ہے؟ سکھانا. خوف کیا کر رہا ہے؟ ہمیں تربیت دے رہا ہے, سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, پہچان دے رہا ہے. تو خوف کی وجہ سے تربیت آتی ہے, اس تربیت سے ہم حکمت والے بن جاتے ہیں. تو تربیت کیا کرتی ہے؟ ہمیں حکیم بنا دیتی ہے, سمجھدار بنا دیتی ہے. لیکن اگر آپ تربیت ہی نہیں سننا پسند کرتے اور اگر آپ کو تربیت ہی نہیں دی جاتی تو آپ حکمت والے نہیں بن سکتے. ہم بے وقوف کے بے وقوف رہیں گے اور اس بے وقوفی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے. تو خدا کا خوف حاصل کرنے کے لیے ہمیں تربیت لینی پڑے گی. ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ کیا ہونا ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. انسان کو کون سی راہ چننی ہے, خدا کی یا شیطان کی, نیکی کی کہ بدی کی. نیکی میں فائدہ ہے یا نقصان ہے, بدی میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں یہ تربیت مل جائے کہ جو سچ ہے ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں تھا, اس کو ہمیں تھامے رکھنا ہے مضبوطی سے. ہمارے ذہن میں جب یہ باتیں مضبوط ہو جائیں گی, جیسے ایک درخت ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, تو اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں کہ درخت جو ہے وہ نہیں گرتا, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. تو جو جڑیں ہیں وہ ہماری تربیت ہمیں ملتی رہے تو ہم اپنی تعلیم میں جو ہمیں دی گئی ہے خدا کے سچائی اور خدا کے کلام اور تعلیم میں ہم جڑیں مضبوط کریں گے. لیکن اگر ہمیں تعلیم ملتی رہے اور تربیت ملتی رہے, یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہفتے کے بعد سبت کے دن چرچ جا کے آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ کلام سن کے آپ یہ اپنے آپ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں تربیت یافتہ ہوں. تربیت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے بچوں کو تربیت دو. تو جب آپ تربیت نہیں دو گے اور آپ کو تربیت ہر وقت نہیں ملے گی تو حکمت آپ کے اندر نہیں آئے گی. اور وہ حکمت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا کا خوف رکھو,
आगे जहन्नुम की आग है, आगे वो आग है, मेरा बेटा वहां पर तुम जलते रहोगे, मेरी बेटी तुम वहां पे जलती रहोगी। और अगर माँ बाप आपको एक दफ़ा समझा देते, या आप किसी पास्टर से सुन लेते हो, या आप कहीं से भी कलाम, आपका दोस्त, अच्छा दोस्त आपको अच्छी तरबियत दे देता है खुदा के कलाम में से, जो कि खुद मसीही है और आपको मसीही तालीम देता है, और हमारा क्या काम है कि वो तरबियत अगर उस वक्त आपको कोई बताने वाला ना हो तो अपने से बात करो, अपने आप को सिखाओ, अपने आप को तरबियत दो कि मैंने ये बात सुनी थी, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको जहन से नहीं निकालना, मैंने इसको मजबूती से थामे रखना है। उसको अपने मुंह से बार बार बोलो और अपने आप से बात करो और अपने आप को तरबियत दो, क्योंकि सबसे बड़ा उस्ताद जो आपकी जिंदगी में जमीन पर है आप खुद दो। यीशु मसीह ने हमें जो तालीम दी वो रूहुल कुद्स के वसीला से आज हमारे अंदर जिंदा और कायम है। लेकिन रूहुल कुद्स भी जब आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो कितनी तालीम देगा, लेकिन जब आप अपने आप को वही बात जो रूहुल कुद्स आपको बता रहा है, जो यीशु मसीह ने आपको बताई, जो खुदा ने आपको कलाम मुकद्दस में दी, या जो आपका पास्टर आपको बता रहा है, या जो आपके माँ बाप ने दे दिए, आप अपने आप के अंदर दोहराओगे, बार बार कहोगे, तो रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा, रूहुल कुद्स आपको मजबूत करेगा, वो आपको ताकत बख्शेगा जो आप चाहते हो। तो आप अपने आप को बार बार तरबियत दो। किस वजह से? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये हिकमत है, कि खुदा से डरना जो है वो है हिकमत, समझदारी है। मैंने समझदार बनना है, मैं बेवकूफ़ों की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मैं इब्लीस के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं नहीं बनूंगा, मैं समझदार बनूंगा, मैं हिकमत वाला बनूंगा। खुदावन ने कहा है कि जो हिकमत वाले हैं वो आसमान की बादशाह में जाएंगे। कलाम मुकद्दस में एक और जगह खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जो हिकमत वाला है वो अपना घर चट्टान पे बनाता है, और चट्टान पे बनाने का मतलब है कलाम का सुनना और उस पर अमल करना। बगैर अमल के कुछ भी नहीं है। हमारा ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो अगर हम अक्लमंद हैं तो उस अक्लमंदी में यकीनी तौर पे अमल होना चाहिए। अगर आप कलाम सुनते हो, अपने आप को बार बार तरबियत नहीं देते, रूहुल कुद्स की बात नहीं सुनते, बार बार अपने आप को उस तरफ माइल नहीं करते जो खुदावन ने तालीम दी, जो आपने कलाम सुन लिया है, अपने आप से बात करो, अपने आप को सिखाओ, बार बार मना करो, अपने आप को गाइड करो, जहां गलत होते हो वहां पे रोको। आप ही हो जो आप अपने साथ सबसे ज्यादा रहते हो, कोई आपके साथ सबसे ज्यादा नहीं रह सकता। आपका माँ बाप एक दफा आपको समझा देगा, आपका पास्टर है आपको एक दफा समझा देगा, लेकिन आप खुद जब तक अक्लमंदी को खुद से नहीं पकड़ना चाहते, थामना नहीं चाहते, तो आपकी जिंदगी का कोई हाल नहीं है। इसी बेवकूफी में मर जाएंगे हम। तो हमने आज हिकमत को सुना, और हिकमत क्या है? कि खुदा का खौफ रखना है। इसको बेवकूफ़ी और बुज़दिली नहीं कहते। कुछ लोग डर को पसंद नहीं करते कि जी हम क्यों डरें, लेकिन खुदा चाहते हैं हम डरें। तो जो खुदा चाहते हैं हमें वो करना चाहिए, क्योंकि अदालत जो है इंसानों ने नहीं लेनी, ना हमारी सोच ने लेनी है, खुदा ने लेनी है। तो हमने अपने आप को खुदा से डरते और कांपते हुए ये ज़िंदगी गुजारनी है कि खुदा हर वक्त देख रहे हैं, खुदा देख रहे हैं। हमें ये सच कबूल करना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं खुदा देख रहे हैं। रासबाजी करूंगा तो इसका अजर मिलेगा, बदी करूंगा तो मैं डरूं और मैं ये ना करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बदी करूंगा, जहां कहीं भी करूंगा, जिधर भी करूंगा, किसी गार में करूंगा, छुपके करूंगा, माँ बाप से छुपके करूंगा, चोरी करूंगा, लेकिन खुदा की नजरों से नहीं बच सकता। ये है सच्चाई, इसको कबूल करना है। और उस सच्चाई में हमें यह पता होना चाहिए कि खुदावंद उसके बाद हमें आग में डाल देंगे हमारी बदियों की वजह से। तो हमने डरते और कांपते हुए खुदा का खौफ रखना कि खुदा अजाब में डाल देंगे, उस भयानक आग में डाल देंगे, फिर खुदावंद तरस ना खाएंगे, फिर खुदावंद रहम ना करेंगे, फिर दोबारा यीशु मसीह नहीं आएंगे बचाने। खुदावंद यीशु मसीह आ चुके, आज हमने उसका फायदा उठाना है।
दोबारा फिर से रहम नहीं इंसाफ के बाद होगा। हमने ये डर अपने अंदर डालना है और उस डर, इस तरबियत के साथ हमने अक्लमंद बन के इस डर में अमल डालना है। अगर हम डरते हैं तो हम इस डर में अमल डालेंगे और डर की वजह से हम बच सकते हैं। खौफ की वजह से, खुदावंद के खौफ की वजह से हम बच सकते हैं। मैं फिर से ये आयत पढ़ूंगी जो इमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 6ठी आयत है, उसका आधा हिस्सा ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगी। और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। अगर खुदावंद का खौफ है तो हम अपने कदमों को बदी से, गुनाह से, हर उस बात से जिससे खुदा नाराज होते हैं, खुदा को दुख होता है, खुदा का जलाल कम हो, खुदा की बेइज्जती हो हमारे वसीला से, वो बात हम छोड़ दें। ये अमल अगर हमारी ज़िंदगी में है कि हम बाज रहें, परहेजगारी करें, अक्लमंद रहें, डरते हुए अमल करें, तो हम लोग बच जाएंगे। तो खुदा का खौफ जो है वो हमें हमेशा की आग से, खुदा के अजाब से बचाए रखता है। मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, लानतों से, रुसवाई से, कमी कमजोरियों से, भूख नंग तंग से बचाए रखता है। तो खुदावंद का खौफ हमें बचाता है, तो हमें खुदावंद का खौफ रखना चाहिए। जिस्मानी बातों के लिए तो हम डरते हैं, अपने जिस्मानी माल के लिए और जिस्मानी इस ज़िंदगी के लिए हम डरते हैं और उसके लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं, परहेज़ करते हैं, लॉक करते हैं अपने घर को और अपनी जान की और माल की जो दुनियावी है, फ़ानी है, उसके लिए तो बहुत मेहनत करते हैं और परहेज़ करते हैं और उसमें अमल लाते हैं हिकमत के साथ। लेकिन जो गैर फ़ानी ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमें खुदा के खौफ के साथ मिलेगी, हम उसके लिए कोई अमल नहीं करते। और अगर हम ये कहें कि हम खुदा से डरते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि जब आप खुदा के कलाम पर ही नहीं अमल करते और उसके ख़िलाफ़ जो है जितने भी बदी के काम हैं वो करते हैं, तो फिर किस तरह से कह सकते हैं कि हम खुदा से डरते हैं। तो हमें खुदा से डरते और कांपते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मैं इतनी बात ज़रूर पूछूंगी कि कौन सा डर है। क्या हम जब अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो क्या खुदा का खौफ उस वक़्त हमारे अंदर होता है? जब हम अपने बहन भाइयों से बात कर रहे होते हैं तो खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है? या हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो क्या खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है? या जब हम कोई बदी का काम कर रहे होते हैं तो क्या खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है? या हम खुदा को याद रखते हैं या खुदा के गज़ब को याद रखते हैं? या जब हम गलत काम करके ज़िना करते हैं या हम सिगरेट पीते हैं या हम कोई भी नशा करते हैं, तो क्या खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है? या जब हम दूसरों की चुगलियां लगा रहे होते हैं, ऐब जोइयां कर रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, तो क्या खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है? या खुदा का खौफ हमें याद आता है? क्या खुदा की सज़ा याद आती है? खुदा का गज़ब याद आता है? जब हम बदतमीज़ी से बात करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे से चीज़ें छीनते हैं, चीज़ों का लालच रखते हैं और हर वक्त दुनियावी चीज़ें मांगते रहते हैं और ज़िद करते हैं और अपने रवैये को जो बुरा होता है उसको दिखाते रहते हैं, और जब हम ये सब काम करते हैं तो क्या उसमें खुदा का खौफ रखा हुआ होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं रखा होता। हमें खुदा के खौफ के लिए हमें अब मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप ये ना समझे कि आज आपने कलाम सुन लिया तो डर खौफ आपके अंदर आ गया, नहीं, बल्कि जैसे जैसे आप खुदा से डरते और कांपते हुए बदी को छोड़ोगे, इसके लिए अमल करोगे, तो ही आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुदा के खौफ का जो फल है, हिकमत के साथ, परहेजगारी के साथ आपके अंदर आता रहेगा। तो ही हम ये कह सकते हैं, फिर एक वक्त आएगा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर खुदा का डर और खौफ है, क्योंकि मैं सारा दिन खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारता हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।